قرآن کو 7 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. اب پہلے حصے کو تیسرے کلمے میں لے لیں, اس کو کثرت سے پڑھیں, اور تیسرے حصے میں سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھیں, اور 5ویں حصے میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کی طرف رزق آئے گا, وقار آئے گا, دولت آئے گی, روحانیت آئے گی, عزت آئے گی. 7 آسمان 7 زمین, طواف کے 7 چکر, 7 کے ساتھ ہفتے کے 7 دن, 7 کے ساتھ قرآن کو 7 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. 7 حصوں میں اگر تقسیم کر لیں تو میں پہلا حصہ بتاتا ہوں, پھر دوسرا, پھر تیسرا. پہلے حصے میں کئی وظائف, کئی عمل, کئی عملیات ہیں. اب پہلے حصے کو تیسرے کلمے میں لے لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو کثرت سے پڑھیں, کثرت سے پڑھیں. اگر اس پورے مہینے کے 7 دن طے کر لیں, 7 حصے کر لیں پورے مہینے کے, اور جو دوسرا 7واں دن دوسرا حصہ ہے, 7واں دن نہیں دوسرا حصہ ہے, اس میں نا ہم استغفار کو کثرت سے پڑھیں, اور تیسرے حصے میں سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھیں, اور چوتھے حصے میں سورۃ الکوثر, اور 5ویں حصے میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ. اس میں بہت فتوحات ہیں, بہت برکات ہیں, بہت خیریں ہیں. اور چھٹے حصے میں سورۃ فلق, اور 7ویں میں سورۃ ناس. اگر یہ پڑھ لیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کی طرف رزق آئے گا, وقار آئے گا, دولت آئے گی, روحانیت آئے گی, عزت آئے گی, قرضے ختم ہوں گے, بیماریاں ختم ہوں گی, ناکامیاں ختم ہوں گی, گھریلو الجھنیں ختم ہوں گی, حالات کی سختیاں اور تلخیاں ختم ہوں گی. باقی وظائف سب مبارک ہیں, میں اور بھی بتاتا ہوں, لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا, دوسرا کہ بتائیں ہر وظیفے کے ساتھ جو ہے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ اجازت نہیں لیتے تو آپ کو اس کے کوئی جو ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کے ذہن میں بہت ساری اس کے حوالے سے سوالات ہیں, تو آپ رہنمائی کیجیے گا کہ ہر وظیفے کے ساتھ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے, یہ اجازت عام ہوتی ہے. چونکہ میں بڑوں سے 4 درویشوں کی جوتی سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے, ان بڑوں سے اجازت ہے, اور میں بحیثیت کامل وزیر اور بزرگ کی اجازت نہیں دوں گا, بحیثیت ڈاکیے کے میں اجازت دوں گا کہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے, اور وہ میں اجازت دوں گا اپنے تمام وظائف کی. چاہیے قبلہ صاحب ہمارا دیکھنے والوں کو یہ رہنمائی کیجیے گا کہ نظر بد کا جو ہے بہت زیادہ آج کل ہر کوئی بیمار ہے, اور کوئی لوگ کہتے ہیں نظر بد لگ گئی ہے, اس کے لیے کیا ایسا عمل کیا جائے کہ نظر بد ختم ہو جائے یا اپنے حفاظتی اثار میں سے شخص آ جائے؟ میری حضور کی ایک حدیث ہے, میری امتی سب سے زیادہ نظر بد سے فوت ہوں گے, اور میرے آقا کا فرمان ہے نظر بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں تلوا دیتی ہے. النظر حق العین حق. اور اس وقت پوری دنیا کی سائنس نظر بد پہ بہت زیادہ تحقیقات کر رہی ہے. اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں, پہلے تو اپنی حفاظت کا اسباب بنائیں. ایک ہے حسد کی نظر, ایک ہے حسرت کی نظر. حسد کی نظر تو سمجھ آتی ہے, حسرت کی نظر سمجھ نہیں آتی. مثلا آپ پھل, گوشت, چیزیں شاپر میں لا رہے ہیں اور وہ نظر آ رہی ہیں, غریب جس کی استطاعت ہی نہیں ہے, اس کی نظر پڑی, حسرت کی نظر اس کی کھا جائے گی. حسرت, اے کاش میرے پاس بھی ہوتا. کتنے لوگ میرے پاس آئے زندگی میں گزشتہ 40 سال کے اس طالب علمی کے سفر میں, حسرت کی نظر کے مارے ہوئے تھے, کہتے تھے ہم پہ جادو کر دیا, جنات کر دیا, یہ کر دیا. میں کچھ بھی نہیں, تمہیں حسرت کی نظر کھا گئی. دیکھیں میں بڑے کہتے ہیں 3 چیزیں چھپانے کی ہیں, رزق, کھانا, عورت اور دولت. یہ چھپانے کی چیز ہے. اچھا, اور وہی ہم ظاہر کرتے ہیں. وہ حسرت کی نظر کھا جاتی ہے. پہلے تو اس اسباب پہ نظر رکھیں, اسباب پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا پھر اس کی حفاظت ہے. آیت الکرسی کی پہلی آیت 100 دفعہ, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس کو 100 دفعہ پڑھیں وجدان سے. پھر آیت الکرسی پڑھیں. آخری آیت ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم, پھر اس کو 100 دفعہ پڑھیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف. یہ ایک آیت الکرسی بنے گی.
पहली आयत 100 दफा, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें, जब आखिरी आयत पढ़ें फिर 100 बार अवल आखिर दरूद पाक। अगर ये अमल कर लें, नजर बद का तसव्वुर करें, सख्त से सख्त नजर बद आपके किसी प्यारे पे, किसी अजीज पे लगी हुई है, उसका सख्त तसव्वुर करके आप पढ़ें तो आपको इसका बहुत बाकमाल रिजल्ट, बहुत नतीजा, बहुत खैर मिलेगी। सर हर शख्स ना पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है और वो कहता है मेरा किसी जल्दी वीज़ा लग जाए, तो जो लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए कोई वजीफा इनाद कीजिएगा। जी, जो चाहते हैं कि मेरे कदम फतूहात की तरफ उठे, कामयाबियों की तरफ उठे और मेरे कदम ऐसे हों कि जहां भी जाऊं मैं कामयाब हो जाऊं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या वारिस हो या नसीर हो। मौला मेरा कोई वारिस नहीं है, तू वारिस है। मेरा कोई मददगार, नसीर कहते हैं जिसके कोई मददगार, बड़ी हस्तियां हों, बड़े ताकतवर लोग, मौला में कोई नहीं है। और हस्बुनल्लाह, मेरे लिए तू ही काफी है। जो बंदा इसको डूब के पढ़े, बात आ जाती है डूब के, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, मंगता बन के सारा दिन पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या वारिस हो या नसीर हो, गैबी निज़ाम चलता है। अच्छा, ऊँट की हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियां देख रहा हूँ मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊँट की हड्डियां हैं या कोई और भी? सिर्फ ऊँट की हड्डियां हैं। और ऊँट की, ये देखिए ना, ऊँट की खोपड़ियां पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ियां ऊँट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ज्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियां। इसमें कोई हिकमत भी बयान? ऊँट की जो हड्डी है ये जादू का इलाज है, नजर बद का इलाज है। और ऊँट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है, ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख़ की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज़्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख़ भी है। अच्छा, कि मतलब मैं म्यूजियम में नज़र गई है, वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ ज़रा वो भी साथ साथ एक जना मुझे पड़ा यहाँ पर, वो एक कोई वेस्पा है क्या? मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा उसकी कोई जो है तारीख़ आपसे पूछी जाए कि ये जो है ना पुरानी चीज़ें, चूँकि मुझे शौक़ है पुरानी चीज़ें जमा करने का, तो इसका दौर ही ख़त्म हो गया। तो जिन चीज़ों का दौर ख़त्म हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको जमा करता रहूँ। ये कितना साल लगा आपको ये सारी चीज़ें जमा करने में, और ये इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं अर्ज़ किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है और पुराना मुझे ये चीज़ विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नज़र आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है, ये जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। सूफी इकराम बड़ा जिक्र करते ये हैं। पुराना हुक्का है। अच्छा, बहुत पुरानी, बहुत इससे भी पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे पास ही हैं, क्योंकि जगह नहीं है। अब ये देखिए ऊँट की, ये ऊँट की खाल बालों का बना हुआ है। अच्छा, जी, कालीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु लिअहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए इंसानियत और उम्मत की हिदायत के लिए, आप अकेले नहीं आए, आपके साथ एक किताब थी जिसका नाम कुरान है। आप अकेले नहीं आए, आपके साथ वही थी जो जिब्रील के जरिए आई, और कुरान ने इंसानियत को खैरें पहुंचाई और क़यामत तक खैरें मिलती रहेंगी, बरकतें पहुंचाई और क़यामत तक बरकतें मिलती रहेंगी, राहतें पहुंचाई और क़यामत तक इंसानियत को राहत मिलती रहेगी। ये कुरान खैर का जरिया है, रहमत का जरिया है, आफियत का जरिया है, और इस कुरान में बरकत भी है, रहमत भी है, शिफा भी है, अता भी है, और दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल का 100% हल है। ये बताएं कि जब कुरान हो और फिर मसाइल हो, और कुरान हो फिर उलझने हो, हाँ एक चीज है कि अल्लाह पाक बाज़ औक़ात अपने अंबिया को आज़माइश अता फरमाते हैं, और जो नादान होता है, नावाकिफ होता है, उस आज़माइश को समझ नहीं पाता।
इन्होंने मुझे परेशान किया है। परेशान से मुराद मुझे भूल गए हैं, मुझसे पीठ की है, मुझे छोड़ चुके हैं। अल्लाह तो इनको ऐसी परेशानी दे जिसमें ये दुखते रहें, परेशान होते रहें। बद्दुआएं देता है कुरान। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत की, अल्लाह को खुद देखा, खुद रब को देखा। ओए हाय, वो इमाम अहमद बिन हम्बल है जिनको जंजीरों से बांध के घसीटा जा रहा है, जिन पे कोड़े मारे जा रहे हैं, जो रूह की दुनिया से, विलायत की दुनिया से नावाकिफ है, वो तो कहेंगे कि इमाम अहमद बिन हम्बल यहां वजीफे करते, तस्बीहां करते, पर नहीं, रब का कोई एक और निजाम भी है जो तेरी समझ से बालाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को ख्वाब में देखा। अल्लाह पूछा, या अल्लाह, तेरा कुर्ब, तेरी दोस्ती, तेरा ताल्लुक कैसे नसीब हो? मैं तेरा यार बन जाऊं, यार रहे या रब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र और फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशाद हूं। या अल्लाह, तेरा कुर्ब कैसे नसीब? और मैं अहमद कुरान पढ़ने से, कुरान से, कुरान से। तो पूछा, या अल्लाह कि ये कुरान देख के, समझ के, नहीं समझ के या बगैर समझे? फरमाया, जैसे पढ़, कुरान जितना पढ़ता जाएगा मेरी दोस्ती, मेरा ताल्लुक, विलायत के दर्जे मिलते चले जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट कुरान को दे दे, बड़े बड़े बद्दुआओं से बच जाएंगे, बहुत बड़ी बद्दुआओं से। एक साहब थे, उन्हें कढ़ाई का काम करते थे, उनके घर खवातीन 8-10 आती थी, ये हाथ से कढ़ाई का काम करते थे। फिर ये हाथ से बने हुए कपड़े वो कराची में दे आते थे और कराची से बाहर जाते थे, बाहरले मुल्क में, वहां ये चीजों बहुत पसंद की जाती है। तो एक दफा कहने लगे कि हमारे घर में हालात बहुत सख्त हैं, कोई दुआ फरमा दे। मैंने एक दुआ कर दी, फिर कुछ अर्से के बाद कहा कि हालात हमारा साथ नहीं दे रहे, आप दुआ फरमा दें। तो मैंने इस तरह आते रहे और मुझसे अपने हालात, कर्जे, बीमारियां, मुश्किलात, राहें बंद, रास्ते बंद, नाकामियां, ये सब बयान करते रहे। एक दफा मैंने कहने लगे, मैंने कहा घर चलो। मुझे हर दफा कहते थे घर चल के अगर दुआ फरमा दें, अगर दुआ फरमा दें, मैं घर चलो। तो मुझे घर ले गए। तो मैं बाहर खड़ा हो गया, मैंने कहा पहले घर जाके इतला कर। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने कोई घर को समेटा, मैं घर गया। कुछ खवातीन बैठी थी उधर, कढ़ाइयों का काम कर रही थी, हाथ से सीना परोना, फूल बनाने, जो भी होता है ये कर रही थी। और घर में एक वीरानी थी और घर में एक वहशत थी, और एहसास हो रहा था कि शायद ये घर वालों को रोटी कैसे मिलती है, इनकी गुर्बत और फक्र और तंगदस्ती कैसे, खाना कैसे मिलता, खाना कैसे मिलता। तो मैंने उनसे हाल हवाल पूछे, तो उनसे कहा, जी कारोबार हमारे पास बहुत है, काम बहुत है, हम जाते हैं कराची में, बड़े बड़े ताजर हमें बुलाते हैं, पैसे पेशी देते हैं और हमें कहते हैं माल हमें दे, वो कहते हैं हमें दे, हमें बढ़ा चढ़ा के कीमत देते हैं, तो घर में कुछ नहीं बचता। और ये जो खवातीन आती हैं ये ले जाती हैं, ये रोज बरोज मालदार होती जा रही है, और हम जो इतना बड़ा कारोबार करते हैं, हम रोज बरोज मकरूज, फकीर, मंगते और तंगदस्त होते जा रहे हैं। तो कहने लगे हम क्या करें, हमारे पर मसाइल, परेशानियां। हमारे किसी ने कहा कि जादू है, फिर हमने उसके लिए ये अमल किया, उसने इतने पैसे लिए। किसी ने कहा जिन्नात हैं, किसी ने कहा काली चीजें हैं, कोई इतना आया। उन्होंने मुझे एक लंबे चौड़े वाकयात सुनाए जिसमें मेरा सारा खर्चा ही खर्चा था, खर्चा ही खर्चा था। कभी खर्चा किस नाम से, कभी खर्चा किस नाम से।
کبھی کس نام سے، سارا خرچہ ہی خرچہ تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگا پڑھا۔ میں کہا وہیں لے جاؤں۔ میں کہنا لے آؤں میں کہنا مجھے لے چل۔ تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے، بہت سارے کاغذ۔ کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے ABC والے قاعدے، ان کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے